Afternoon, students. I hope you all are doing well. Today we are going to begin the new chapter of history, which is chapter number 9, Life in the Villages and Towns. Let us begin now. We'll start with the first topic, which is your second urbanization. Now, students, you are very well aware of the word urbanization, right? So, let us talk about this topic in detail. Look at point 1 and read along with me. The first point is the Mauryan Empire saw the growth of many towns, the progress in agriculture on one side, and growth of science on other was bringing about a social change. So students, in the previous class we studied about the period after Vedic period, right? After Vedic period, what all changes happened. So here we are studying about second urbanization. It means that we are here studying about the growth, okay, how the towns, how the cities are growing, how they have grown, that we are going to see here. Okay, so it is written that there was continuously progress. Okay, the Mauryan Empire, when the Mauryan Empire was there, okay, so during their era there was growth of many towns. मतलब जब मौर्यन एम्पायर का पीरियड चल रहा था, सो देर वॉज मेनी ग्रोथ इन द टाउन्स. टाउन्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रहे थे. ओके, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ बेटा? द एग्रीकल्चरल ग्रोथ मीन्स एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा था, एंड देर वॉज ग्रोथ ऑफ साइंस also. Okay, science means your technologies were growing, so everything was growing, developing, right? Now, coming to the second point, there were many new job opportunities coming up in trade, craft, building, constructions, etc. Here the comma will be there, right? Now students, you very well know that we not we, like the people, the earlier the people had main occupation of farming. Okay, they only do agriculture. Okay, previously they were busy in the farming activity only. But during this era, during the Mauryan Empire period, during the Mauryan period, what happened is there was continuously growth of many towns. The town were developing, there was development in agriculture, there was development in science. So people had more job opportunities. मतलब पहले के लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं होता था, so they were only busy with the farming activities, the agricultural activities. But slowly and slowly the town were growing, technologies were growing, so definitely they had many other things to do as well. Okay, other than फार्मिंग के अलावा भी उनके सामने बहुत सारी नई नई चीज़ें आई जॉब करने के लिए, जहाँ पे वो जाकर काम कर सकते थे, उन चीज़ों को सीख सकते थे. एंड व्हाट वाज दैट? Trade means generally you're buying and selling of goods. Okay, that process is known as your trade. So people engaged themselves in doing business, they did crafts, they constructed building, and many constructions like road and etc were built. So लोग सिर्फ फार्मिंग को नहीं बट दूसरी चीज़ों के तरफ भी जाने लगे. फॉर एग्जाम्पल फॉर कंस्ट्रक्शंस, they went in construction, they did business, they were craftsmen. Okay, many different kinds of work they did apart from farming. Okay, now the next point here is the period of 400 BC is also known as the second urbanization. Now BCE beta, BCE, okay, here the E will be there. Now the period of 400 BC means जब 400 साल पहले की अगर हम बात करें, during 400 BCE, that period is known as your second urbanization. Why it is known as second urbanization beta? You are very well aware of the urbanization beta. Urbanization means growth of towns, okay, growth of population, okay, growth of technologies, growth of infrastructure. Okay, that is all about urbanization, right? So this period is known as your second urbanization. सो विच इज़ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन? मौर्यन टाइम में ये ग्रोथ हुआ, इसलिए ये ग्रोथ को सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है. लेकिन फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या है? फर्स्ट अर्बनाइजेशन मीन्स सबसे पहले कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हुई है, जहाँ पे दिखा है कि हाँ द एरिया इज डेवलपिंग, द टाउन्स आर डेवलपिंग. तो ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे फर्स्ट डेवलपमेंट या फर्स्ट ग्रोथ हुआ है? दैट इज बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन. वी हैव स्टडीड इन हिस्ट्री. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन
where we have seen many growth. Many types of buildings were there, many types of towns were there, many types of construction work was there. And through that we can see that during Indus Valley, okay, during Indus Valley civilization, the people had the knowledge of other things as well. Apart from farming, they had the knowledge of many other things. Okay, so Indus Valley civilization was known as your first civilization, and this 400 BCE, the Mauryan Empire, during the Mauryan Empire, this is known as your second urbanization. Okay, now next is your next point is the growth of towns can be grouped under three heads. Now basically beta, the towns were categorized into three important heads. Okay, first was political centers, means a group of town, some of some of its place was known as political center, some was known as religious center, and some was known as your trade center. Okay, so these are the three categories of towns, right? So this is all about the introduction of your second urbanization. Now moving to the next topic, which is your growth of agriculture. Now here we are going to see how the agricultural activities took a growth. Now see the paragraph and read along with me. Agriculture was improving because of use of new tools and techniques. Students, we have studied that during this period there was growth in agriculture as well as growth in science. Okay, so science means what? New technologies, new machineries, everything was developing. Okay, so the farmers earlier don't had many tools. पहले के ज़माने में they didn't had any better quality tools or good quality of machineries, but during this period science was developing, technology was developing, so they used different kind of tools and different kind of techniques. They used different kind of machineries, new machineries, new technology for doing their farming activity, right? Now the condition of the roads, tracks, as well as means of transportation were also improving. Means the road, earlier the road was not good, but now the road is developed. Tracks means various areas. Okay, the transportation system, everything was developing. Okay, and this helped people living in the village to transfer their produce to the towns. Now beta, earlier what used to happen is the village area was very confined, means the people of the village were not able to transport the materials to the town because they didn't had a good transportation system. But now they have good transportation system, so they have good roads, they have good transportation system, so now they are able to transport the products which are made in the village. Okay, so they are able to transport the village products to towns and they can sell their products in towns. Okay, so this is how there was growth in agriculture during this period, right? Now moving to the next topic, which is your villages. Now we'll study something about village. Now read the paragraph better. The discovery of iron. Okay, the discovery of iron means जो लोहा था, iron, उसका डिस्कवरी हुआ, एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स यूसेज वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द एरा। मतलब इस समय में लोगों को आयरन के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला जब उनको ये चीज़ें डिस्कवर हुई। अर्लियर दे यूज्ड stone as a tool. Okay, we have studied in the stone age, right? We have studied. Then they started to use copper, and now they are more inclined towards iron. उनको iron मिला, उन्होंने iron discover किया, and they started to use iron in their farming activities. Okay, ना वो लोहे का किस तरह इस्तेमाल करते थे देखिए। इट हेल्प्ड पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक एक्सेस फॉर फेलिंग ट्रीज, टू क्लियर लार्ज एरियाज ऑफ कल्टिवेशन, डिगिंग टूल्स टू डिग वेल्स, कैनल्स फॉर इरीगेशन, अदर टूल्स लाइक क्रॉपिंग टूल्स, सिकल्स फैसिलिटेटेड हार्वेस्टिंग। ना बेटा सी, इन दिस व्हाट हैपेंस इज, उस टाइम पे लोग स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, वुडन टूल्स यूज़ करते थे, बट स्लोली दे डिस्कवर्ड आयरन, सो दे स्टार्टेड टू मेक iron tools for carrying out farming activities. They started to make axes. Axis is a axe, or you can say axe. Okay, axe is a type of tool which are used to
कट द ट्रीज, फेलिंग मीन्स कटिंग द ट्रीज, फेलिंग का मतलब होता है बेटा कटिंग द ट्रीज, ओके, सो कटिंग डाउन द ट्रीज। डिगिंग टूल्स, जो गड्ढा खोदते हैं उसके लिए जो टूल्स बनाते थे वो भी लोहे का बनाने लगे, ओके। नाउ टू डिग वेल, जो कुएं खोदते हैं, कैनाल्स बनाते हैं, उसमें जो टूल्स लगते हैं सभी कुछ आयरन के वो लोग बनाने लगे। एंड मेनी अदर टूल्स, बहुत अलग अलग तरह के टूल्स बनाने लगे, लाइक क्रॉपिंग टूल्स, जब क्रॉप करते हैं, क्रॉपिंग जब धान उगती है, जब मतलब जब फसल उगते हैं, सो क्रॉपिंग के लिए भी एक डिफरेंट तरह का टूल्स आता है, तो वो भी वो लोग बनाने लगे आयरन की हेल्प से। सिकल्स फैसिलिटेटेड हार्वेस्टिंग, जो दिस काइंड ऑफ टूल्स बेटा जो इस तरह के शेप में होता है, राइट, सी शेप, एंड वन हैंडल इज देयर हियर, ओके, this kind of tool was developed which is known as your sickle, okay, so harvesting में ये चीज़ यूज़ होते थे। so these people used iron to make different kinds of tools for carrying out the farming activities, right? सो दिस वॉज हाउ दे वर डेवलपिंग, इस तरह से बेटा वो डेवलप कर रहे थे, इस तरह से वो अपनी सारी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे थे, स्लोली एंड स्लोली दे स्टार्टेड टू डेवलप, ओके। नाउ moving towards the next topic, which is your village administration. Now what is village administration? See beta, village administration means, see, in village many activities are carried out, okay, many activities are carried out. विलेज कंसिस्ट ऑफ मेनी पीपल, राइट, एक विलेज में बहुत तरह के लोग होते हैं, वी हैव मेनी काइंड ऑफ पीपल, बट देयर शुड बी समबडी ऑन द टॉप, ऑन द टॉप टू मैनेज एवरीथिंग। कोई हमारे जैसे हमारे घर पे the head of the family is the one who actually manages everything, okay, they manage all the activities of house. So in the same way there are village administration people who actually manage different activities of the village, they take care of the requirement of the village. So we will study about that, okay. Now read the line beta. In the northern region, we are talking about the northern region, मतलब northern region की तरफ the land owner was known as गृहपति। लैंड ओनर मतलब जिनकी ज़मीन होती है, मतलब जिनका प्रॉपर्टी होता है या जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी होता है या जिनकी ज़मीन होती है, जो वो जिस लैंड के जो ओनर होते हैं उनको कहा जाता है गृहपति, राइट। नाउ दोज हु डिड नॉट ओन लैंड वर नोन एज दसकर्माकर, जिनके पास लैंड नहीं होता खुद का उनको कहा जाता है बेटा दसकर्माकर। जिसके पास लैंड होता है, जो ओनर होते हैं उनको कहा जाता है गृहपति। जिनके ओनर नहीं होते हैं, जिनके पास लैंड अपना खुद का नहीं होता है, उनको कहा जाता है दसकर्माकर, राइट। नाउ the person who had the highest land ownership was known as the village headman and was called the gram bhojak. Now the person who had the highest land ownership means जो person पूरे village में जिस person के पास सबसे ज़्यादा land होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा लैंड होगा मतलब वो सबसे ज़्यादा अमीर होगा या फिर सबसे ज़्यादा वो वेल्दी होगा, उसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होंगी। सो उस पर्सन को विलेज हेडमैन बोला जाता है। विलेज हेडमैन मतलब जो विलेज का हेड है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा ओनरशिप है लैंड का, मतलब ही इज़ द ओनर ऑफ मेनी लैंड, उसके पास सबसे ज़्यादा लैंड होते हैं, तो उनको कहा जाता है विलेज हेडमैन। और विलेज हेडमैन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम भोजक, ओके। So he is known as the gram bhojak. So who is the head of the village? Village headman. Village के head कौन है बेटा? Village headman. And village headman को क्या बोला जाता है? ग्राम भोजक, ओके, जो सारी चीज़ों को संभालते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ग्राम भोजक? ग्राम भोजक का क्या काम होता है बेटा? दैट वी आर गोइंग टू सी हियर, ओके। नाउ सी, ही वाज आल्सो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द रूलर। ना बेटा, पहले के ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो लोगों से, अब राजा महाराजा थे तो पहले के ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पे टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है, ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट नहीं था जैसे आज लोग अपना टैक्स पटाने जाते हैं ऑफिस में। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, राजा महाराजा थे तो लोग जो कमाते थे उनसे कुछ परसेंट, ओके, लिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। मतलब जो भी वो कमा रहे हैं उस कमाई का कुछ हिस्सा वो राजा को देते थे, ताकि राजा उस पैसे को यूज़ करके प्रजा के लिए इस्तेमाल कर सकें या उसके लिए राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो पैसे होते थे
वो कौन कलेक्ट करता था लोगों से? जो रेवेन्यू होता था, जो छोटा छोटा जो लोगों से कलेक्ट किया जाता था जो पैसे, ऑन बिहाफ ऑफ किंग, रूरल जो रूलर होते हैं, जो वो कलेक्ट नहीं करते, उनके बिहाफ में कौन कलेक्ट करते हैं? ग्राम भोजक होते हैं। ठीक है, सो दे हैड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द रूलर। Okay, now next is the post was hereditary. Hereditary मतलब बेटा who becomes ग्राम भोजक? ग्राम भोजक एक ऐसा पद है जो हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब अगर मान लो अभी कोई इंसान है जो ग्राम भोजक थे, अगर उनकी डेथ हो गई तो उनका पोस्ट किनको मिल जाएगा? उनके नेक्स्ट सन को, सक्सेसर को। ठीक है, जो भी उनके, तो वो एक हेरिडिटरी होता है, ये पोस्ट जो होता है वो पूरे पूरे वंश चलाते हैं उनको। ठीक है, सो वैसे होता है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज द ग्राम भोजक was also expected to act as a judge for local feuds। मतलब ग्राम भोजक जो होते थे बेटा वो एक जज के तौर पे काम करते थे। कौन से जज? मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोकल फ्यूड्स, लोकल फ्यूड्स का मतलब होता है जनरली what happens is when there is argument, okay, between the people or the group, ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे बहुत, जैसे गांव में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं किसी ग्रुप में, या फिर देर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन द पीपल, सो द ग्राम भोजक वॉज द पर्सन हु एक्चुअली हैड द ड्यूटी टू सेटल द डिस्प्यूट्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं लोगों के बीच में, उन सब चीज़ों को सेटल करना, उन सब चीज़ों को जज करना, किसका काम था? ग्राम भोजक का, राइट? सो दिस वॉज द ड्यूटी ऑफ ग्राम भोजक। ओके, now, the next point. What is the next point? In the villages of the south, okay, we have studied about the north. ये सारी चीज़ें बेटा northern region में हुआ करती थी. In the village of the south, the cultivators were known by three different names. In the southern region, okay, towards the southern region, there were different cultivators, means जो farming activity करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? If the first is Vellalar, okay, or you can say Vellalar. तो द वेलालर वॉज नोन एज द लार्ज लैंड ओनर्स, मतलब वेलालर उनको बोला जाता था जिनके पास बहुत सारा लैंड होता था अपना, बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते थे, वो बहुत अमीर होते थे। नाउ द सेकंड वॉज उझावर, उझावर उनको बोला जाता था जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती, थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है, उनको बोला जाता है स्मॉल उझावर। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर Kadesiar. Now these are the landless worker. Landless worker means those who don't have the land of their own. मतलब उनके खुद की ज़मीन नहीं होती है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है खुद की, उनको बोला जाता है कडेसियार। Okay, so these are the three names generally of the owners. Okay, land owners, right? So this is all about your विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कि विलेज को कौन संभालता था, हाउ द एक्टिविटीज वर कैरिड ऑन, एवरीथिंग, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज योर लैंड मैनेजमेंट। नाउ वी नो दैट विलेज हैड अ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड, विलेज में लैंड एरिया होता था, तो लैंड एरिया क्या होता है, किसके नाम पे होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ओके, जस्ट रीड अलॉन्ग विथ मी। नाउ देयर वॉज सम लैंड विच वर प्राइवेट एंड दीज वर प्रॉपरली मार्क्ड। कुछ कुछ लैंड होते थे बेटा इन विलेज एरिया, ओके, विच वर प्राइवेट, मतलब वो प्राइवेट होते थे, मतलब वो लोगों के नाम पे होते थे। ठीक है, प्राइवेट मतलब जो खुद के नाम पे होना, जैसे खुद का प्रॉपर्टी होना, जैसे अगर हम हैं तो हमारा खुद, हम किसी भी लैंड को अगर हम ओनर हैं तो वो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ। सो वहाँ पे बहुत सारे लैंड ऐसे होते थे जो लोगों के होते थे, तो वो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके, next line is the land was assessed for crop produce and based on this revenue was charged by the ruler। now assessed फॉर क्रॉप प्रोड्यूस मतलब क्या होता था बेटा, जैसे बहुत सारे कल्टिवेटर्स होते थे, सो दे हैव डिफरेंट लैंड्स, किसी के पास बहुत सारा लैंड होता था, किसी के पास छोटा लैंड होता है, किसी के पास डिफरेंट साइज ऑफ लैंड दे हैड। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर कल्टिवेशन, की जो ज़्यादा लैंड है, जो ज़्यादा क्रॉप कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा इनकम होगा, तो उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। मतलब बेटा ज़्यादा पैसा लिया जाएगा का मतलब ये होता है कि देखो, राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए, राजा के पास पैसे कहाँ से आएंगे बेटा?
राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए, ओके, अपने लोगों को संभालने के लिए, उसकी आर्मीज जो होती हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो राजघराने के, उनको संभालने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ओके, कुछ अमाउंट चाहिए होता है। वो अमाउंट कहाँ से मिलता है? वो अमाउंट लोगों से आते हैं। जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, कुछ अपना कमाई करते हैं, कमाई का कुछ हिस्सा वो रूलर को, मीन्स जो राजा होते हैं, उनको देते हैं, ताकि वो राजा उस पैसे को इस्तेमाल करके अपने राज्य के लिए लगाए। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जो रूलर होते हैं, जो राजा होते हैं, वो लोगों से पैसे लेते हैं। और लोगों से पैसे किस हिसाब से लिए जाते हैं? जिनके पास ज़्यादा लैंड होता है, ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा कमाते होंगे, तो उनसे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। जिन लोगों के पास लैंड छोटी होती है, उनकी कमाई भी ज़्यादा नहीं होती, तो उन लोगों से थोड़ा सा कम पैसा आता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट द अमाउंट वर चार्ज्ड। जिसके पास ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा इनकम चार्ज होगा, जिसके पास कम है तो उनसे कम पैसे आएंगे। ठीक है, सो दिस वे। Now, people were not allowed to occupy vacant pieces of land just on their own will. मतलब लोगों को ये इजाज़त नहीं थी कि वो खाली जगह को अपने नाम पे कर लें। जैसे बहुत सारे एरिया होते हैं बेटा, यू माइट हैव सीन मेनी लैंड्स आर देयर विच आर जस्ट वेकेंट, मतलब ऐसे खाली ज़मीन पड़ी होती है। इट डजेंट मीन कि वो अपने नाम पे वो ज़मीन करवा लें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे वो। ठीक है, सो these things were not allowed, right? So this is all about your development. What we have seen, how the agricultural development was there, how the village started to develop, how the village administration worked, and how the land area were managed by the people, right? Okay, so now we are moving towards the next topic, which is your other occupation. Now students, we very well know that the people were doing what kind of business? The farming business. But apart from the farming business, there were many other jobs which they were involved in. So what are the other job occupations? See, in addition to the farmers and the workers, there were many other occupations which had started in the villages. These were potters, carpenters, weavers, blacksmiths, and cobblers. Due to increase in crop production beyond the requirement of the landowner himself, the occupation of traders came into being, who took away the surplus grain to sell in the towns. बेटा, now देखो, what is the reason बेटा? यहाँ पे मैं आपको पूरा पैराग्राफ समझाती हूँ. See, earlier the people had one basic occupation. वो क्या है बताइए? The basic occupation of the people is farming, right? Correct. So the basic occupation of the people is farming. Now farming के अलावा जैसे हमने बोला कि यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई, साइंस में डेवलपमेंट हुई, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई. सो दे हैड मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़. उनको बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, बहुत अलग अलग तरह की जॉब करने का उनको मौका मिला, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें उनके सामने आई. तो वो सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करते थे, बट कई तरह की जॉब भी करते थे. लाइक कोई कोई कारपेंटर्स थे, कोई पॉटर्स थे, पॉटरी बनाते थे. ओके, समवेयर द वीवर, समवेयर द ब्लैक स्मिथ, समवेयर द कॉबलर. सो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स वर डन बाय द people. Okay, so they had different kind of job because they were developing, the area were developing, टाउन बड़े हो रहे थे, इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही थी, लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी कि सिर्फ फार्मिंग में ही नहीं, पर उनको कई ऐसी चीज़ें नई नई सीखने करने का मौका मिल रहा था. राइट, now what used to happen beta? See the next paragraph, it is written, due to the increase in crop production. Now we have studied that कि एग्रीकल्चर में लोगों ने आयरन टूल्स यूज़ करना इस्तेमाल किया था. एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहा था, आयरन टूल्स यूज़ कर रहे थे, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही थी. राइट, सो अगर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो क्रॉप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता था. मतलब पहले जो होता था, लोगों के पास इतना ज़्यादा मशीनरी नहीं होता था. दे डिडंट हैड that like so good technologies, they didn't had good machineries, so they were not able to grow crops in large quantity. But now they have nice machinery, they have good machineries, they have very nice technologies. So in this way what happens, in this way they started to grow more crops. मतलब उनकी प्रोडक्शन बढ़ने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप वो ग्रो करने लगे. तो पहले क्या होता था, क्रॉप्स कम होते थे, तो वो
थोड़ा बहुत क्रॉप्स को सेल करते थे एंड थोड़ा बहुत खुद के लिए रखते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब उनके पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके पास सारी मशीनरीज़ हैं, उनके पास अच्छे टूल्स हैं, तो उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके वो ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेट करते हैं। जब वो ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो कुछ तो वो अपने लिए रखते हैं एंड उनके पास बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जो सरप्लस होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बचे हुए होते हैं। तो वो बचे हुए क्रॉप्स को क्या करते हैं बेटा, दे यूज़ टू सेल इट इन द टाउन्स। मतलब वो क्या करने लगे, पहले लोग क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे वो पहले जो क्रॉप वो उगाते थे वो या तो गांव के लोगों में बांट देते थे थोड़ा बहुत, और वो खुद अपने लिए रख लेते थे। बट अब क्या होने लगा, अब उनके पास बहुत क्रॉप्स कल्टीवेट होने लगे, तो उस क्रॉप्स का वो लोग क्या करने लगे, दे स्टार्टेड टू दे स्टार्टेड टू डू ट्रेड। मतलब वो बाइंग एंड सेलिंग करने लगे, और कहाँ जाके वो लोग सेल करने लगे, इन द टाउन्स। तो धीरे धीरे वो अपने क्रॉप्स लेकर टाउन्स की तरफ गए एंड दे स्टार्टेड टू सेल आउट द क्रॉप्स टू द पीपल ऑफ द town. In this way they started to do trading. In this way they started to do the business. तो यहाँ से उनको business करने का भी knowledge आया। ठीक है, so this is all about your occupation. Okay, now we will see the development of trade. जो मैंने यहाँ पे बताया बेटा कि वो लोग टाउन की तरफ जाके अपने क्रॉप्स को बेचने लगे, तो इससे क्या हुआ, उनको बिजनेस करने का आइडिया आया कि हाँ हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स बच रहे हैं या फिर हमने जो सरप्लस क्रॉप्स उगाए हैं उनको हम टाउन में जाके सेल आउट कर सकते हैं। और सेल आउट करने का मतलब क्या होता है, टाउन में जाके वो फ्री में थोड़ा ना सेल आउट करेंगे। इफ़ दे विल गो टू सेल आउट द क्रॉप्स दे विल अर्न सम इनकम, उनको उसका पैसा मिलेगा। तो दे स्टार्टेड टू डू ट्रेडिंग। तो इस तरह से वो बिजनेस करने लगे और इस तरह से ट्रेड करना स्टार्ट हुआ। सो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट मीन्स इसी तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, बिजनेस करना स्टार्ट हुआ। ओके, now the increased use of currency coins was another development which facilitated trade. now बहुत इस टाइम पे बहुत सारे coins इस्तेमाल हो रहे थे। okay, earlier they didn't had any coin. okay, you might have studied about barter system beta. see, read this paragraph, you will understand. Many punch marked coins were found by the archaeologist. okay, earlier, मतलब पहले, earlier the system of selling good was in the form of barter where goods were exchanged as payment, but using currency was a new development. मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा, barter system हुआ करता था। barter system मतलब क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स। अगर कोई किसान है जो धान उगा रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा किसान है जो दाल का फसल कर रहा है, दाल उगा रहा है, तो क्या होगा, एक बोरी धान वो देंगे और उसके बदले उनको एक बोरी दाल मिल जाएगी। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के बदले गुड्स। इस तरह का पहले सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि लोग उस टाइम पे पैसे जानते नहीं थे कि पैसा होता है। सो उस टाइम पे गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे। अगर वो सामने वाला चावल दे रहा है तो उसके बदले अगला व्यक्ति जो होता है वो उनको दाल देता है। तो गुड्स के बदले गुड्स होता था, दैट इज़ द बार्टर सिस्टम। बट स्लोली एंड स्लोली एवरीथिंग वाज डेवलपिंग, कॉइन्स आने लगे, करेंसी बनने लगे, सब कुछ होने लगा। सो ये बार्टर सिस्टम बंद हो गया एंड स्टिल इट इज़ प्रिवेलिंग। बहुत जगह पे बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह पे दिस सिस्टम इज़ प्रिवेलिंग इन सम ऑफ द विलेजेस, सम ऑफ द एरियाज। ओके, सो व्हेन द करेंसी केम, जब कॉइन्स बनने लगे तो बार्टर सिस्टम बंद हो गया एंड करेंसी वॉज अ न्यू डेवलपमेंट, मीन्स करेंसी का डेवलपमेंट होने लगा। एंड जब करेंसी डेवलपमेंट होने लगा, कॉइन जब बनने लगा, या फिर जब इस तरह का डेवलपमेंट हुआ तो बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले बिज़नेस करना मुश्किल होता था, लेकिन जब से कॉइन्स, करेंसी ये आ गए तो तब से बिज़नेस करना और आसान हो गया है। ओके, now the next is your urban development. Now students, what is urban development? See, urban development means what? Development means किस तरह से डेवलप हो रही थी सारी चीज़ें। सी, द इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स एंड इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्शन लेफ्ट मेनी पीपल विदाउट एनी वर्क इन द विलेज. That people took another occupation and started to move to town centers in search of work, and this led to population growth. The towns are generally classified into three groups: religious towns, capital towns and trading centers. बेटा क्या होता था अर्बन डेवलपमेंट मतलब
अभी हमने पढ़ा कि विलेज किस तरह से ग्रो हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेनी टेक्नोलॉजीज़ आर देयर, मेनी मशीनरीज आर देयर। देखो पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास जॉब नहीं होता था, तो लोग विलेज में रहते थे, जो उनके पास होता था उसको यूज़ करके जॉब करते थे। बट लोगों के पास अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे दूसरे ऑक्यूपेशन में जा रहे हैं। लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ नहीं करते, कई तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जिन लोगों के पास जॉब नहीं होती थी, गांव में जिन लोगों के पास जॉब नहीं होती थी, वो लोग अब टाउन में आकर सेटल होने लगे हैं। उनको ये लगता है कि अगर टाउन में रहेंगे तो उनको कई तरह के जॉब करने मिलेंगे, चाहे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, चाहे रोड बनाने का वर्क हो, कुछ भी हो, they will get the job in the town. So they started to move towards town. ओके, एंड जब वो टाउन की तरफ मूव होने लगे तो टाउन का पॉपुलेशन क्या होने लगा, बढ़ने लगा। क्यों? द पीपल वर मूविंग टूवर्ड्स द टाउन इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट? सो here we are studying about the towns. What are the towns? Basically beta there are three categories of towns: religious towns, capital towns and trading centers. तीन तरह के towns होते थे बेटा। देखो रिलीजियस टाउन्स किसको बोला जाता है? मेनी टाउन स्टार्टेड ग्रोइंग बिकॉज दे वर पिलग्रिमेज प्लेसेस फॉर पीपल ऑफ वेरियस फेथ, लाइक बोध गया, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन। मतलब कई तरह के टाउन्स थे बेटा जहाँ पे वो पिलग्रिमेज, जो पिलग्रिमेज होता है ना, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जैसे बोध गया इज़ अ रिलीजियस प्लेस, मथुरा इज़ अ रिलीजियस प्लेस, वाराणसी इज़ अ रिलीजियस प्लेस। तो ऐसी जगह पे लोग विजिट करने लगे। क्यों विजिट करने लगे? क्यों वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया? बिकॉज इट वॉज द सेंटर ऑफ रिलीजियस, लाइक जनरली इट वाज अ रिलीजियस टाउन। ये सारे रिलीजियस प्लेसेस थे, तो लोग वहाँ पे भी जाके, ये भी टाउन्स ग्रो होने लगे बिकॉज लोग वहाँ पे भी जाते थे जनरली, और पिलग्रिमेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर कैपिटल टाउन। कैपिटल टाउन किसको बोला जाता है बेटा? कैपिटल टाउन्स वर द टाउन्स वेयर पीपल हियर इंक्लूडेड द रॉयल फैमिलीज एंड देयर मिनिस्टर्स एंड देयर सोल्जर्स, their administrative staff, the craft person and the traders were one who started to be more dominant, and they lived close to the center. It means that बेटा कैपिटल टाउन किसको बोला जाता था? उस टाउन को जहाँ पे रॉयल फैमिलीज रहती थी, लाइक बेसिकली योर रॉयल फैमिलीज, और लाइक योर किंग्स और देयर मिनिस्टर्स and their soldiers, okay, and plus their staff, okay. Staff means those who carry out the work of that town. Administrative means जो town की activities को carry out करते थे. Official staff, many kind of different craft person, traders mean different type of business person. So all these people lived where? In capital town. So this way these towns were developing. Okay, now the next is your trading center. Now what is trading center beta? These were the other areas of concentration of large population and growth of towns. These were such centers which facilitated moving across rivers and provided many roads in different direction. मतलब ट्रेडिंग सेंटर्स मतलब ये ऐसे जगह थे बेटा जहाँ पे, जिस जगह से क्या होने लगा? डेवलपमेंट होने लगा। मीन्स वो ऐसे जगह थे बेटा, वो ऐसे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ से जिससे लोग क्रॉस करके ट्रेडिंग करने जाते थे। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करने जाते थे, जिस रूट से होते हुए बिजनेस करने जाते थे। मतलब वो जनरली एक ट्रेडिंग सेंटर था, मतलब वो बिजनेस करने का एक प्लेस था जहाँ पे जनरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लोग उस एरिया में बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग करते थे। एंड उस रास्ते से होकर कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से वो लोग बिजनेस करने जाया करते थे अलग अलग जगह पे। सो देर आर सम प्लेस, ऐसे बहुत फेमस फेमस ट्रेड रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं। ओके, नाउ द वन इज़ द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिंदू कुश, नाउ इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये हिंदू कुश रेंज है, माउंटेन रेंज है, जहाँ से, जिसके थ्रू से लोग इधर से उधर बिजनेस करने जाया करते थे। ओके, नाउ पेशावर नियर पाकिस्तान कैपिटल वाज वन सच टाउन। पेशावर भी एक टाउन है, वहाँ पे भी एक ऐसा वहाँ वो टाउन एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग क्या करने जाते थे? नियर पाकिस्तान कैपिटल वाज वन सच टाउन। वहाँ पे भी लोग, जनरली वो ट्रेड सेंटर था, वहाँ पे बेसिकली बहुत बिजनेस हुआ करते थे। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ टाउन्स: रिलीजियस टाउन्स, कैपिटल टाउन्स एंड योर ट्रेडिंग टाउन्स। ओके, और ट्रेडिंग centers, right? Now here is your last topic, which is a governance. Now beta governance means there should be somebody, as I told you, जो आपके जो राज्य होता है उसको हेड जो होता है, that is the king, या फिर जो
जो उसको संभालता है, उसको गवर्न करना, तो उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। गवर्नेंस, द रूलर अलॉन्ग विथ हिज मिनिस्टर्स यूज टू रूल द किंगडम। हु इज गोइंग टू रूल द किंगडम? द रूलर। एंड रूलर अकेले तो रूल नहीं करेगा बेटा, अलॉन्ग विथ इट्स मिनिस्टर मीन्स जो भी उनके सहभागी होते थे, जो साथ में उनके काम करते थे, उनके साथ वो पूरे किंगडम को संभालते थे। ओके, नाउ रेवेन्यू कलेक्शन, सी द नेक्स्ट टॉपिक, रेवेन्यू कलेक्शन। नाउ रेवेन्यू कलेक्शन मतलब जैसे मैंने आपको बताया, रूलर जो होते थे लोगों से कुछ पैसे लेते थे ताकि वो अपने राज्य की देखरेख कर सकें, संभाल सकें। सो ओके, सो दैट इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा इनकम। इनकम मतलब कमाई, जो इनकम आता है, पैसे आते हैं, जो मनी। ओके, दैट इज़ द रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्शन देखो, टैक्सेस और रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द पीपल वर्किंग इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। जैसे मैंने बताया, लोगों से टैक्स लिया जाता था, लोगों से कुछ इनकम लिया जाता था जो किंग यूज़ करते थे for the development of the kingdom. Okay, now water sources. Water sources means, see, most of the towns were still close to major source of water like rivers and lakes. There were many development in the technique of water sourcing. Wells were dug in different forms and canals laid out to arrange water for the population. Water sources बेटा बहुत सारे ऐसे towns थे जो रिवर और लेक के साइड में ही थे, तो उनको तो ईजिली वाटर मिल जाता था। बट बहुत सारे ऐसी जगह पे थे जहाँ पे वेल्स बनाया गया था, कुएं बनाए गए थे ताकि लोगों तक पानी पहुँचाया जा सके। कैनाल्स बनाए थे जहाँ पे लोगों तक पानी पहुँचाया जा सके। ओके, नाउ रोड्स एंड ट्रैक्स। रोड्स एंड ट्रैक्स मीन्स देखो, द किंग्स यूज टू स्पेंड मनी ऑन रोड्स एंड ट्रैक्स। किंग्स जो होते थे धीरे धीरे रोड बनाने लगे, रास्ते बनाने लगे। ओके, दिस हेल्प देम मूव देयर आर्मीज टू डिफरेंट प्लेसेस एज पर द रिक्वायरमेंट। द रोड्स ऑल्सो फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रेडिंग गुड्स ऑफ ऑल टाइप्स। धीरे धीरे जो किंग होते थे अपने पैसे कहाँ लगाते थे? फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड ट्रैक्स। धीरे धीरे वो रोड पे पैसे लगाने लगे, ट्रैक्स बनाने लगे। उससे उनका हेल्प क्या हुआ बेटा, कि पहले क्या होता था, अच्छी रोड्स नहीं थी, उनके पास जगह नहीं था कि वो अपने सामान को इधर से उधर ले पाएँ या फिर दूसरी जगह पे जाकर बिजनेस कर पाएँ। बट जब वो रोड बिल्ड हो गई है तो एक जगह से दूसरी जगह कम से कम वो ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरी जगह वो बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाने लगे और अपने गुड्स को ट्रेड करने लगे, बेचने लगे। और अपने आर्मीज़ को भी पहले वो दूर दूर नहीं भेज पाते थे क्योंकि वहाँ पे कोई देर वर नो रोड्स। ओके, वहाँ पे रास्ते ही नहीं हुआ करते थे। बट स्लोली एंड स्लोली जब वहाँ पे रोड्स बनने लगे, रास्ते बनने लगे, तो वो अपने आर्मीज़ को ऐसे ऐसे जगह पे पहुँचा रहे थे जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। ओके, now the next is a religion. Now beside the Hindu religion, other religions such as Jainism and Buddhism had also gained prominence. All had their own following but they lived in harmony. सिर्फ हिंदू रिलीजन नहीं बेटा, उसके साथ साथ जैनिज़्म, बुद्धिज़्म भी उस टाइम पे लोग फॉलो करते थे। सिर्फ हिंदू नहीं बट जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी लोग फॉलो करते थे। और सभी लोग एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करके हारमनी में रहते थे। हारमनी मीन्स विदाउट एनी फाइट, स्मूथली। ओके, वेरी स्मूथली विदाउट एनी फाइट, आराम से रहते थे बिकॉज दे रिस्पेक्टेड ईच अदर्स रिलीजन। ओके, नाउ धीरे धीरे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि लोग इस तरफ से गांव से उठ के टाउन में आने लगे, टेक्नोलॉजीज़ बनने लगी, साइंस अच्छा हो रहा था, साइंस में नॉलेज आने लगा। तो अल्टीमेटली लोगों के पास बहुत जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी आया, लोग बिजनेस करने लगे। सो दैट ओनली कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा होने लगा, ट्रेडिंग करने लगे। ट्रेडिंग मतलब बेटा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इस तरह से ट्रेडिंग होने लगी। ओके, सो यहाँ पे लिखा है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द नॉलेज ऑफ वीविंग लेड टू मेनी पीपल अडॉप्टिंग द आर्ट ऑफ वीविंग। जो बेटा वीविंग करते हैं, क्लोथ वीविंग होता है ना, सिलाई बुनाई करना, वीविंग करना। सो दिस वर्क वॉज टेकन ऑन एंड इवन बाई वुमेन एट होम वाइल मैन वेर एट वर्क इन द फील्ड। मतलब जो महिलाएं होती थी जो घर पे, वो वीविंग का काम करने लगी, घर पे बैठ के सिलाई बुनाई करने लगे। पहले के लोग ऐसे होते थे पहले कि लेडीज़ को काम करने नहीं दिया जाता था बाहर जाकर, बट अब ऐसे होने लगा कि उनको भी मौका मिलने लगा। और जो आदमी होते हैं वो बाहर जाके फील्ड में जॉब करते थे। ओके, now the traders and the craft person formed associations which were called श्रेणीज। traders and craft person बेटा जो बिजनेसमैन होते थे, जो क्राफ्टमैन होते थे, उनका एक ग्रुप होता था। उस ग्रुप को कहा जाता है श्रेणीज। ओके, श्रेणीज बोले जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि श्रेणीज का क्या काम होता है। सी द श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन procured raw material
and distributed the finished good. They also carried out training for new craft person, मतलब जो श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो क्या होता है, जो क्राफ्टमैन होते हैं बेटा, जो क्राफ्ट बनाते हैं, कोई भी क्राफ्ट हो। ओके, सो द श्रेणीज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन मतलब जो लोग थे, उनका एक एसोसिएशन था, ग्रुप ऑफ पीपल थे। वो ग्रुप ऑफ पीपल का काम क्या होता था, कुछ भी चीज़ को बनाने के पहले हमें उसका रॉ मटेरियल चाहिए। अगर हम फर्नीचर बनाने वाले हैं, हम बेड बनाना है, हमें टेबल बनाना है, तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वी नीड वुड। तो वुड कलेक्शन का काम किसका होगा, वुड कलेक्शन का काम होगा श्रेणीज का। इन द सेम वे जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, अगर वो कुछ बना रहे हैं तो वो क्या करते थे, वो सारे रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करते थे एंड उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के सेल आउट करते थे मार्केट में। ठीक है, और जो वो न्यू न्यू क्राफ्ट्समैन में होते थे उनको भी ट्रेनिंग दिया करते थे। ओके, now the next point is the shrenis of merchants and traders sold the goods in the market. The shrenis also acted like bank establishment. Bank establishment means what beta? They collected money from the rich and gave them some interest. They invested the money and issued loans. मतलब क्या होता था, पहले आपने देखा होगा गांव में बैंक नहीं होता था या फिर लोगों को बैंक के बारे में नॉलेज नहीं होता था, तो वो ज़मींदार लोगों के पास जाते थे और उनसे कर्जा लेते थे। ओके, सो इन दिस वे जो श्रेणीज होते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल, ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन, उनका काम क्या होता था बेटा, जो अमीर होते थे या फिर जिनके पास बहुत पैसा होता था, उनसे वो पैसे लेते थे उधार पे और लोगों को देते थे। ओके, लोगों को देते थे कुछ इंटरेस्ट पे। ठीक है, जैसे आजकल होते हैं, लोग कुछ पैसे ले जाते हैं फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट पटाते रहते हैं। सो इस तरह से वो लोगों को लोन के तौर पे पैसे देने लगे। ओके, नाउ दे ऑल्सो गेव सम ऑफ देयर अर्निंग टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, रिलीजियस मतलब बहुत सारे मंदिर हो गए या फिर कहीं पे भी कोई भी रिलीजियस प्लेस में वो कंट्रीब्यूट करने लगे, पैसे देने लगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल डन बाई श्रेणीज। ओके, श्रेणीज जो होते थे उनका ये सब काम होता था। ठीक है, नाउ द लास्ट लाइन इज देयर वॉज एन ओवरऑल डेवलपमेंट इन एंड अराउंड द पीरियड ऑफ 4th एंड द 3rd सेंचुरी BC। तो बेसिकली जो आपका 4th सेंचुरी और जो 3rd सेंचुरी बोला जाता है, उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा, विलेज का भी और टाउन का भी। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है बेटा, किस तरह से विलेज और टाउन ग्रो हुए हैं, अर्बनाइजेशन हुई है, ट्रेड बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है। ओके, टाउन्स अच्छे ग्रो हो चुके हैं। सो एवरीथिंग वी स्टडीड अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। ओके, so this is all about this chapter. So this is the end. Thank you.